हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। सो मैं ब्रजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं नीट की PYQs की क्लास में। सो आई एम ब्रजेश कुमार एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ नीट PYQs सेशन। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। एज यू नो वेरी वेल, in the previous class we had discussed some important points of chemical bonding and in today's class we are continuing with this. Okay, so आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसी बात को, VBT. First of all, I want to discuss this valence bond theory. So in bonding theories we will be discussing MOT as well, molecular orbital theory. हम molecular orbital theory को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। So VBT क्या कहती है, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच क्या है? The valence bond approach to covalent bonding is basically concerned with the energetics of covalent bond formation, about which the Lewis and Vesper models are silent. So there are some limitations actually in Lewis and Vesper models. मतलब कुछ limitations हैं Lewis and Vesper models में, जिनको explain करने के लिए आई हमारी VBT theory, right? VBT discusses bond formation in terms of overlap of orbitals. Overlap of orbital कैसे, इस बात को मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। आई वांट टू एक्सप्लेन दिस वेरी क्लियरली। सो यू कैन सी हियर, आई वांट टू एक्सप्लेन H2 molecule. So in H2 molecule there are two nucleus, I mean to say hydrogen atom having one electron, right? Electron configuration is 1s1. So this is the nucleus of hydrogen having one proton. This is the nucleus of another hydrogen having one proton, and one hydrogen has only वन इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सो यू कैन सी हियर, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन A ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन B ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन। सो ऑलरेडी देयर आर सम इंटरेक्शंस बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली विद दिस न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ इंटरेक्शंस है। अब न्यू जो इंटरेक्शंस आएंगी वो क्या आएंगी, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यू फोर्सेस आएंगे, न्यू इंटरेक्शंस आएंगी। इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यू इंटरेक्शंस आएंगी, और ये दोनों न्यूक्लियस अगर पास आएंगे तो इनके बीच में भी क्या आएंगी, इंटरेक्शंस आएंगी। अब हमारे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अगर वो रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हुए, देन बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। इफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीकर देन रिपल्सिव फोर्सेस, देन बॉन्ड फॉर्मेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। सो बेसिकली VBT किस बात को लेकर डिस्कस करती है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल, द फॉर्मेशन ऑफ द H2 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टू हाइड्रोजन एटम्स इन्वॉल्व द ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल्स of the two hydrogen atoms which are singly occupied. Singly occupied means 1s1 is the electronic configuration. The potential energy of the system gets lowered as the two hydrogen atoms comes near to each other. If the energy is lower, डेफिनेटली आपको पता है अगर एनर्जी लो होगी तो इसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। अगर एनर्जी हायर है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही, अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू दिस क्लास। हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। सो वी आर डिस्कसिंग some important points. That means we are summarizing the chapter, then we will be discussing some important questions of NEET PYQs, right? That means we will be discussing NEET PYQs, that means NEET previous year questions. Okay, important questions. At the equilibrium internuclear distance, the energy touches a minimum. At this minimum point, right, the energy is minimum, that means stability is maximum. Any attempt to bring the nuclei still closer result in a sudden increase in the energy and consequent destabilization of the molecule. I will tell you with a diagram. I will show you everything. मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा सारी चीजें दिखाऊंगा। Because of orbital overlap, the electron density between the nuclei increases, which helps in bringing them closer. The actual bond enthalpy and bond length values are not obtained by overlap alone, and other variables have to be taken into account as well. ठीक है, हमें और भी बहुत सारे variables देखने पड़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर एक्सप्लेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, लिनस पॉलिंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, sp हम पढ़ चुके हैं, sp3 वी हैव लर्नड, sp3 sp2 sp3d dsp2 sp3d2 d2sp3 etc, right? sp3d3 hybridization of atomic orbitals of beryllium, boron, carbon, nitrogen are used to explain the formation geometrical shapes of what, like BeCl2,
BCl3, CH4, NH3, H2O. They also explain the formation of multiple bonds in molecules like C2H2, which is nothing that is eth plus ine ethine, that is the simplest alkyne. The next one is ethene, eth plus ene ethene, that is nothing that is simplest alkene, right? The next point I want to discuss the MOT, molecular orbital theory. Then I will be discussing the important graphs of VBT as well, right? The potential energy curve I will be discussing. So MOT, molecular orbital theory. VBT में क्या था? कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पर बेस्ड है. यहां पर क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस and they will form new orbitals. Those new orbitals are named as molecular orbitals. So the molecular orbital theory describes bonding in terms of the combination and rearrangement of atomic orbitals to form molecular orbitals that are associated with the molecule as a whole. The number of molecular orbitals are always equal to the number of combining atomic orbitals. यहाँ पर दो टाइप के ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. एक होंगे BMOs मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एक होते हैं ABMOs मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई and they are lower in energy. Definitely bonding takes place because of lower in energy and stability increases than the individual atomic orbital. मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी लोअर एनर्जी रहेगी एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन हो रहे थे, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ABMO हैव ए रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी between the nuclei and have more energy. More energy means more instability. More energy means more instability, less stability than the individual atomic orbitals. मैं आपको डायग्राम की फॉर्म में दिखाऊंगा. The electronic configuration of the molecules is written by filling electrons in the molecular orbitals in the order of increasing energy levels, and we have to follow the same rules as we are following while filling the electrons in atomic orbitals. That means Aufbau principle हमें यूज करना है, Pauli's exclusion principle and Hund's multiplicity rule. For atoms, the Pauli's exclusion principle, Hund's rule are applicable for filling of molecular orbitals. ये हमें यहाँ पर भी यूज करने हैं और वहां पर भी हम यूज कर रहे थे. Molecules are said to be stable if the number of electrons in bonding molecular orbitals, that means BMOs, is greater than the anti-bonding. If the number of electrons present in BMOs are more than that ABMO, then the molecule is said to be stable. This stays therefore stable. But if BMO electrons are less than the ABMO, that means if the number of electrons present in ABMO are more than that of BMO, then definitely the molecule will be unstable, right? So totally, because anti-bonding molecular orbital has higher energy as compared to the individual atomic orbitals or bonding molecular orbitals. Okay, so जैसा कि आप देख सकते हैं VBT को मैं एक बार क्विकली रिकॉल करता हूं विद इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. आप दो हाइड्रोजन एटम्स कंसीडर करिए A एंड B अप्रोचिंग ईच अदर हैविंग न्यूक्लियाई Na एंड Nb, जैसा कि मैंने आपको बताया था Na and Nb, एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम आर रिप्रेजेंटेड बाय Ea एंड Eb. When the two atoms are at large distance from each other, there is no interaction. जब उन्हें पास लाएंगे तो इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, रिपल्सिव फोर्सेस आएंगे और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी आएंगे. As the two atoms approaches each other, new attractive and repulsive forces begin to operate. Attractive forces arise between the nucleus of one atom and its own electron, that is NaEA. तो Na और Ea के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस, Nb और Eb के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, Na-Eb के बीच में और Nb-Ea के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइज होने लगेंगे. ठीक है, ये आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. सिमिलरली रिपल्सिव फोर्सेस आप यहाँ पर देख सकते हैं. ये हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस, दिस इज द अनदर न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन. सो देयर आर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस. सो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात हो रही है और ये रिपल्सिव फोर्सेस की बात हो रही है. अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगे इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के बीच में. मतलब ये दोनों न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये दोनों न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेंगे. मतलब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज हो चुके हैं,
ठीक है, ये हमारे ओल्ड फोर्सेस थे जिन्हें हम डॉटेड लाइन से दिखाए गए हैं, और जो न्यू फोर्सेस हैं वो हमारे सॉलिड लाइन से दिखाए गए हैं। मतलब ये वाला फोर्स न्यू है और ये वाला फोर्स न्यू है, और ओल्ड फोर्स 2 थे, मतलब टोटल 4 एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अगर हम बात करें रिपल्सिव फोर्सेस की, तो रिपल्सिव फोर्सेस अराइज हुए इस न्यूक्लियर और इस न्यूक्लियस के बीच में 1, और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में 2। तो ऑटोमेटिकली आप नंबर की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि 4 इज मोर देन 2। अगर 4 2 से ज्यादा है तो एट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है किससे, रिपल्सिव फोर्सेस से। तो डेफिनेटली जो रिपल्सिव फोर्सेस आई हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 एटम्स और न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स के बीच में आए हैं। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, forces of attraction and repulsion during the formation of H2 molecules are like this. If the forces of attractions are more than the repulsion forces, definitely molecule formation, bond formation will take place and molecule will be stable. If the force of repulsions are more than the force of attraction, then molecule will be unstable and bond formation will not take place, right? I want to tell you this according with this potential energy curve. You can see here, this is the energy in kilojoule per mole. 435.8 kilojoule of energy is required to dissociate 1 mole of H2. That means this is the BDE. What is this BDE? Bond dissociation enthalpy या bond dissociation energy. और यही इसकी बॉन्ड की होगी एनर्जी, आप इसे बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। तो एक H2 के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स को आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज 435.8 किलोजूल पर मोल। The potential energy curve for the formation of H2 molecule as a function of internuclear distance of hydrogen atoms, the minimum in the curve you can see here corresponds to the most stable state of what? H2. यहां पर overlapping हुई है, right? You can see here this region. I want to show with this red color. This region, right? If you are doing कि आप molecules को जो atoms को उनको और close ला रहे हैं, देन रिपल्सन इंक्रीज होने लगेगा, इंट्रैक्शन ज्यादा होने लगेंगे एंड डेफिनेटली वहां पर एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी। ये हो गया एनर्जी इंक्रीज। और ज्यादा पास लाओगे तो अब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ जाएगा। मतलब आपने एनर्जी सप्लाई करके उन मॉलिक्यूल्स को उन एटम्स को सेपरेट कर लिया इस H2 के मॉलिक्यूल से। क्लियर? इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये आपका जो पॉइंट है, ये वाला, ये मिनिमम पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल स्टेबल है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, और ये उसकी बॉन्ड एनर्जी दिखा रहा है। क्लियर? बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर है। बॉन्ड लेंथ क्या है? 74 पिकोमीटर। सो ये था पोटेंशियल एनर्जी कर्व हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग कुछ इन तरीकों से हो सकती है। एक तो होगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होगी नेगेटिव ओवरलैपिंग, और एक होगी जीरो ओवरलैपिंग। एक लोब को ऐसे दिखाया गया है जिसमें एक पॉजिटिव साइन दिया गया और एक नेगेटिव। जो हमारा साई होता है वो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, मतलब वेव फंक्शन सिंपल भाषा में, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है एक तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अगर पॉजिटिव ओवरलैप कर जाते हैं, सेम साइन वाले ओवरलैप करें, तो इसको बोल देते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जरूरी नहीं है कि पीएक्स ओवरलैप करें, हो सकता है PZ और S ओवरलैप कर जाए पर साइन पॉजिटिव है। एस क्योंकि स्फेरिकल शेप में है तो पूरे पे एक ही साइन है। यहां पर भी देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग में भी क्या हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से ओवरलैपिंग हुए। ठीक है? अगर आप पी वाई की ओवरलैपिंग देखेंगे, ये आपकी पीएक्स की ओवरलैपिंग हो गई, ये आपकी पी वाई की ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है? ये पीएक्स और पीजेड मान लो या पीएक्स मान लो, जिस तरीके से आप बनाना चाहो वो आपके ऊपर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है? ये आपकी पीजेड की होगी, पी वाई की होगी। नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होगा, एक साइन पॉजिटिव दूसरा साइन नेगेटिव, मतलब अपोजिट साइन के लोब्स अगर ओवरलैप करते हैं तो उसे बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग या आउट ऑफ फेज ओवरलैप। और ये वाली कौन सी ओवरलैप है? पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप। ठीक है? दूसरी क्या है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, फिर से अपोजिट साइन, यहां पर भी अपोजिट साइन और इधर भी क्या है, अपोजिट साइन। तो ये कैसी ओवरलैपिंग हुई, नेगेटिव ओवरलैपिंग या आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। जैसे कि हमें भौर ने बताया था कि मान लीजिए एक जो वेव है वो 2 तरीके से ट्रेवल कर सकती है। अगर वो ऐसे ट्रेवल कर रही है तो ये तो हो गया वेव इन फेज। अगर वो इस तरीके से ट्रेवल करने लगी, ये हो गया वेव आउट ऑफ द फेज।
तो एक वेव इन फेज हो सकता है और एक वेव आउट ऑफ द फेज। जीरो ओवरलैपिंग क्या है? आउट ऑफ फेज ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ही डिफरेंट है, ओवरलैपिंग ही नहीं हो पा रही है। एक इस डायरेक्शन में है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, मान लीजिए जेड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आ रहा है एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की करने के लिए, तो स्फेरिकल है ये, तो ये पॉजिटिव हो गया, ओवरलैपिंग ही नहीं हो पा रही, बहुत कम ओवरलैपिंग है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि जीरो ओवरलैपिंग में काउंट होगी। अगर आप इसको देख रहे हो तो ये जीरो ओवरलैपिंग में काउंट होगी। सेम अगर फेज ही डिफरेंट है, पी एक्स मान लीजिए, ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जो कि जेड है, और मान लेते हैं ये एक्स है पी एक्स, और आप इसको ओवरलैप करने लगे किसके साथ? पी जेड के साथ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये ओवरलैपिंग की क्या होगी? जीरो होगी। ये ओवरलैपिंग भी कैसी होगी? जीरो होगी। पी एक्स को पी वाई के साथ भी ओवरलैपिंग करने लगे तो वो भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। इट मीन्स दैट पर्टिकुलर ओवरलैपिंग विल नॉट टेक्स प्लेस, सो डेफिनेटली that will be zero overlap. Okay, it is set to zero overlap. Let's move to the next concept, that is molecular orbital theory, important formulas. As I told you already, formation of molecular orbitals takes place according to this approach, that is LCAO, linear combination of atomic orbitals. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, like this wave, this is the wave and this is the second wave. If both the wave are traveling in same phase, right, that means this crust will lie on this crust and ये ट्रफ बिल्कुल exactly इस ट्रफ के ऊपर आ जाए, then what will happen? Amplitude will increase. This is known as constructive interference, right? Constructive. So suppose the wave function of this wave is psi A and the wave function of this wave is psi B. So this will be psi total will be psi A plus psi B. That means wave function of A plus wave function of B. Mathematically, the formation of molecular orbitals may be described by the LCAO, linear combination of atomic orbitals, that can take place by the addition and subtraction of wave function. Another thing, what will happen? Suppose this is the wave 1, wave function is psi A. Suppose this is the wave 2, wave function psi B. They are traveling in same phase, but crust आ रहा है ट्रफ के ऊपर और ट्रफ आ रहा है क्रस्ट के ऊपर. Then what will happen? The psi total will be, amplitude will increase. अगर क्रस्ट का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो नई जो वेव आएगी वो इस टाइप से आ जाएगी, like this. Then what will happen? The new wave function, that is psi total, will be psi A minus psi B. This is known as destructive. So mathematically, the formation of molecular orbitals takes place by the linear combination of atomic orbitals, that can take place the addition psi A plus psi B and subtraction psi A minus psi B of wave functions of individual atomic orbitals as shown below. अगर आपको साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकालना है या साई टोटल आप बोल सकते हैं, तो साई ए प्लस माइनस साई बी हो सकता है. तो इस बेसिस पर दो टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं. जब साई ए प्लस साई बी हुआ तो उसको बोलते हैं बीएमओस, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जब साई ए माइनस साई बी होता है तो उसको बोलते थे एबीएमओ, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो किया जाता है सिग्मा, पाई और डेल्टा से. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को स्टार लगा के शो किया जाता है सिग्मा स्टार, पाई स्टार, एंड वी हैव टू write delta star. Like you can write sigma is equal to psi a plus psi b and sigma star is equal to psi a minus psi b. That means psi a plus psi b is like constructive and psi a minus psi b is destructive. You can understand with this diagram. So the molecular orbital diagrams, orbital sigma found by the addition of atomic orbital is called the bonding molecular orbital, and जो sigma star है that is found by the subtraction of atomic orbital is called anti-bonding ABMO, anti-bonding molecular orbital. Suppose this is the psi A, increasing energy. We have to make this arrow. This is very important. This is psi B. They are combining. Then what will happen? We will get one. If two atomic orbitals are combining, definitely we will get new two orbitals. So new two orbitals are formed. One is BMO, another is ABMO. One is BMO and another is ABMO. This is BMO and this is ABMO. Suppose one electron is here, one electron is here, so both are combining, so 1 and 1, 2 electrons.
right? Then upper one is empty. So this is sigma star which is nothing, that is psi a. PYQs जो हमारे होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो नीट के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है? वहां से क्वेश्चंस को मैं आपको आज डिस्कस करूंगा उन क्वेश्चंस को। ये जो सिग्मा स्टार है ये आपका होगा साई ए माइनस साई बी एंड दिस इज व्हाट सिग्मा दैट इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी. So this is bonding molecular orbital. Energy is lower than that of atomic orbitals as well as ABMO. This is anti-bonding molecular orbital having higher energy than that of individual atomic orbitals as well as BMO. Clear? So it is very clear with this representation or with this diagram that we have two atomic orbitals, they are combining and we will get the same number of molecular orbitals, right? जितने atomic orbitals combine कर रहे हैं. So if two atomic orbitals are combining, one is here, so we will get two molecular orbitals. Out of these two, one is bonding molecular orbital, another is anti-bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital have lower energy than individual atoms as well as anti-bonding molecular orbital. And anti-bonding molecular orbital की energy individual atomic orbital और bonding molecular orbital दोनों से ज्यादा होगी. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. आप यहां पर देखेंगे कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. जैसा कि मैंने आपको शो करने की कोशिश करी है, आप यहां पर देखेंगे ये 1s और 1s का दिखाया गया है. तो होगा क्या, जब 1s और 1s में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कंबाइन हो रहे हैं और ये जा रहे हैं सिग्मा 1s में, और ये एंटी बॉन्डिंग है जो कि है सिग्मा स्टार 1s. तो जो 1s है वो स्फेरिकल है, वो कुछ ऐसे है. क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है तो माइनस हो रहा होगा वेव फंक्शन कुछ ऐसे. तो रिजल्टिंग जो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. देखो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो होता है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग वाले को सिग्मा स्टार बोल देते हैं और बॉन्डिंग वाले को सिग्मा. अगर आप एंटी बॉन्डिंग यूज करें तो आप सिंपल बोल सकते हो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो कुछ इस तरीके से बनेगा. और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में प्लस होगा तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एडिशन होगी. सेम आप 2p वाला भी देख सकते हैं. यहाँ पे 2p और 2p कंबाइन हुए तो सिग्मा बना है और सिग्मा स्टार बना है. तो 2px और 2px मान लेते हैं या 2pz मान लेते हैं. तो ये बना है कुछ एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब 2p कंबाइन हुआ है. 2p की लो भी कुछ इस तरीके से होती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे डॉट, राइट. और इस तरीके से ये कंबाइन होके जब ये पॉजिटिव हुए तो वो कुछ इस तरीके से कंबाइंड हुआ. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आ चुकी है, राइट. आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस तरीके से वहां पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, दोनों न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे बैठी हुई है. ठीक है, न्यूक्लियस नहीं कहेंगे इस केस में, क्या है, ऑर्बिटल्स. तो ऑर्बिटल के केस में कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स. कौन है, इलेक्ट्रॉन्स इसके केस में, ठीक है, नॉट न्यूक्लियस, सॉरी फॉर दैट. ओके, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट 2p. वो 2p कैसा है, ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग था, ये साइड वाइज देखा लो, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी. अगर एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है तो सेम साइन आपके एडिशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, एडिशन. तो बॉन्डिंग के केस में सिंपल से कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, साई ए प्लस साई बी, और एंटी बॉन्डिंग के केस में साई ए माइनस साई बी. ठीक है, ऑर्बिटल के केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन दिखाया गया और एक इसमें नोड होता है. क्या होता है, नोड. तो ये आपके एनर्जी लेवल डायग्राम हो गए. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन कौन से, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py. जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो आप देखेंगे यहाँ पे पाई बना है और पाई स्टार बना है. जब तक कैसी हो रही थी, हेड टू हेड या एंड टू एंड, उसको हम सिग्मा बोलेंगे. तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन कौन से, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py. क्लियर. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर O2 एंड F2 आप यहां पर देख सकते हैं. किस तरीके से ये हमारा डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा. देखो ये 1s कंबाइन हुए तो 1s कंबाइन होकर क्या बनाएंगे. नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करिए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा. और एनसीईआरटी बुक को एक एक लाइन को ध्यान से रीड करिए और उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए. ठीक है,
सो चलिए मूव करते हैं. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर O2 एंड F2 इज गिवन बिलो. सिग्मा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? सिग्मा स्टार 1s की, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px और पाई 2py आते हैं, उनकी एनर्जी इक्वल होती है. देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py आ जाते हैं, फिर आ जाता है सिग्मा स्टार 2pz. हाउएवर दिस सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉट करेक्ट फॉर द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स. ये O2 एंड F2 के लिए दिया है. बाकी मॉलिक्यूल Li2, Be2, B2, C2, N2 के लिए जो वो होगा इस सीक्वेंस, ये थोड़ी सी अलग हो जाएगी. ये क्या हो जाएगी? थोड़ी सी अलग. तो यहां से वो थोड़ी सी अलग हो जाती है सिग्मा स्टार 2s के बाद. क्लियर? वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा. It has been observed experimentally that for molecules such as B2, C2, N2, the increasing order of energies of various molecular orbital वो क्या हो जाता है? सिग्मा नीचे आ जाता है. ठीक है, सॉरी, पाई नीचे आ जाता है और देन सिग्मा, देन पाई, देन सिग्मा. ये किसके लिए? B2, C2, N2 के लिए. किसके लिए? B2, C2 और N2 के लिए. और O2, F2 इनके लिए क्या है? डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px इक्वल रहेगी पाई 2py की, सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz. The important characteristic feature of this order is that the energy of sigma 2pz molecular orbital is higher than that of pi 2px and pi 2py molecular orbital. एक में होती है 2s 2p मिक्सिंग और एक में नहीं होती है 2s 2p मिक्सिंग. क्लियर? तो ये सारा खेल है sp मिक्सिंग का. चलिए अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में. इफ Nb इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, देन Na इज द नंबर ऑफ electrons occupying the anti-bonding orbitals, then the molecule is stable. If Nb is the number of electrons occupying the BMOs, if Nb is greater than Na, definitely the molecule is said to be stable. If Nb is less than Na, then the molecule is said to be unstable. Right? So what will be the formula for bond order? Bond order का formula होगा, bond order calculate करने के लिए हमें क्या होगा? half number of electrons present in bonding molecular orbital माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. मैं एक रफली डायग्राम आपके माइंड में बना देता हूं, तो वो आपको ध्यान रखना है. यहां मैं बनाता हूं O2 और F2 वाला डायग्राम, और यहां पे बनाता हूं बाकी Li2, B2, B2 एटसेट्रा, C2, N2 जो भी आपको समझने ऑप्शन से पहले वाले. ठीक है, हमें सिर्फ होमो एटॉमिक, ठीक है, हमें सिर्फ होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ही पढ़ने हैं. देखिए ध्यान से, एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है. मैं जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल लेता हूं. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3, 2p3. तो इसके अंदर 1s भी है, 2s भी है, 2p भी है. मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1s बनाना. छोटा छोटा थोड़ा बनाऊंगा, ध्यान से समझना. ये लिया मैंने 1s कंबाइन हुआ, और ss जब कंबाइन होते हैं तो ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होगी वो सिग्मा वाली होगी और सिग्मा 1s बन जाएगा. दो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो दो ही नहीं बनेंगे, एक सिग्मा होगा और एक सिग्मा स्टार होगा. उसी तरीके से जब 2s कंबाइन होगा तो नए दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक होगा सिग्मा 2s और एक होगा सिग्मा स्टार 2s. ठीक है, ये आपके मैं इधर लिख रहा हूं एओज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और सेंटर में जो आ रहे हैं वो सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं. तो जो भी चीज हमें देखनी है, इलेक्ट्रॉन फिल करने है, बॉन्ड ऑर्डर देखना है, स्टेबिलिटी देखनी है मॉलिक्यूल की, तो वो देखनी है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. किसके अकॉर्डिंग? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग. अब मैं बनाने जा रहा हूं 2p, वो ध्यान रखना ध्यान से. 2p के केस में क्या होगा? ये मैंने लिया 2px, 2py, 2pz, और इसी तरीके से दूसरे वाले 2p लिए. अब मान लीजिए ये तीन ऑर्बिटल है, ये 2p लिया, जिनमें तीन ऑर्बिटल है 2px, 2py, 2pz, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो कोई एक ऑर्बिटल तो कर जाएगा ओवरलैपिंग एंड टू एंड या हेड टू हेड, जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. अगर एक बार हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई इन px, py, pz के केस में, तो फिर साइड वाइज ही होगी, हेड टू हेड नहीं होगी, क्योंकि वो वाली पॉसिबल नहीं है. तो एक तो बन जाएगा सिग्मा और दो बनेंगे पाई. एक बनेंगे सिग्मा और दो बनेंगे पाई. तो पाई कहाँ रहेगा? नीचे. पाई कहाँ रहता है? नीचे. और सिग्मा कहाँ रहेगा? ऊपर. ठीक है, थोड़ा और नीचे कर लेंगे, इनसे कम एनर्जी होती है इनकी. फिर ऊपर वही पाई, देन सिग्मा. ये तो हो गया इसका डायग्राम.
अगर मैं इधर डायग्राम बनाऊं तो इतना हिस्सा तो सेम है O2 और F2 के लिए। इस वाले केस को बना देता हूं 2p वाले के केस को, एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, यहां हमें लिखना है एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। ये मैंने 2p लिया, ये भी मैंने 2p लिया। अब होगा क्या, यहां पे सिग्मा नीचे आ जाता है, ध्यान क्या रखना है, यहां पे क्या आ जाता है, सिग्मा नीचे। ये सारे sp मिक्सिंग और विदाउट sp मिक्सिंग का खेल है इन दोनों में, ठीक है। और पाई कहां रह जाता है, ऊपर। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, अगर आपको याद रखना है, आप ऐसे समझिए कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो होगा क्या, ये सिग्मा को नीचे की तरफ खींच लेता है, ऐसे समझ लीजिए। ये सिग्मा को क्या कर लेगा, नीचे की तरफ खींच लेगा। अब sp मिक्सिंग और sp विदाउट sp मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट तो एग्जाम में नहीं पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है क्वेश्चन इन ऑर्बिटल डायग्राम से। तो हमें क्या समझना है कि सिग्मा को नीचे की तरफ खींच ले तो सिग्मा आ गया नीचे, ऑर्बिटल डायग्राम अगर सही होगा तो आंसर सही आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको ये सही ऑर्डर पता होगा तो ऊपर वही पाई और देन सिग्मा। अब हुआ क्या, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहां से स्टार्ट करिए नीचे से, मैं कॉन्फ़िगरेशन तो लिखूंगा नहीं, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बोलेंगे। आज की क्लास में टोटल 15 PYQs होंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है सारे ही, अलग अलग कॉन्सेप्ट से। तो आपको रेडी रहना है अपनी नोटबुक और पेन के साथ। You have to be ready so that we can discuss and you can answer very quickly and you can solve those questions, okay, and so that you can write down your answers in the chat box. I hope you are ready with your notebook and pen, right? Okay, so let's begin with the point. We are discussing molecular orbital configuration. That is very easy to write. You can start from here and go upwards. Sigma 1s, then less than sigma star 1s, फिर उसके बाद कौन दिख रहा है आपको, सिग्मा 2s, फिर कौन दिख रहा है, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद यहां पे एक ऑर्बिटल तो कंबाइन हुआ, किसका मान लीजिए, जेड कंबाइन हो रहा है, तो सिग्मा 2pz, तो ये बनेगा पाई 2px और पाई 2py, एंड हियर यू विल गेट पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, and this one is sigma star 2pz. Sigma star 2s done, then you will go for pi 2px, then the electronic configuration will be pi 2px equal pi 2py, right? They are degenerate, they have same energy, okay. Then go to the next one, which is sigma 2pz, which is sigma 2pz. Then go to the next one, pi star 2px equal to pi star 2py, and then sigma star 2pz. Then what is the difference between this configuration and the molecular orbital configuration of O2 and F2? I want to show you. Sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s. Here till here the configuration will be same. I want to go with this. Then this one is sigma 2pz. Let's suppose pz is combining along the internuclear axis and undergoes head-on-head overlapping. This one is 2p and this one is 2p. So this will be pi 2px. ये क्या होगा, pi 2px, और ये क्या होगा, pi 2py. This one will be pi star 2px. क्या होगा ये, pi star 2px, and this one is pi star 2py. And this is sigma star 2pz. Okay, let's write the molecular orbital configuration. So after sigma star 2s, I am writing after sigma star 2s, you will get first sigma 2pz, then pi 2px having equal energy pi 2py. Okay, I am writing from here, then continue from here, pi star 2px equal energy pi star 2py, and then last sigma star 2pz, right? Sigma star 2pz. This is not limited for 2p only. You can go for 3s, 3p, but mostly we have to discuss till 2p. Okay, I hope so far everything is clear to everyone. So these are the molecular orbital configuration as I discussed already with this diagram. You can see here. So for C2, B2, N2, Li2, etc., the pi will be first, then sigma, then pi, then sigma. But for others,
that means O2 F2, sigma will be first, then pi and sigma. Okay, you can learn like this 1 2 2 1, and here you can understand 2 1 2 1 like this. Okay, let's move to the next point, which is the stability of molecule, as I discussed the formula. So now it's time to start NEET PYQs. Are you ready, everyone? Yes or no? I hope you are ready. Yes. So we have to basically, one important short trick I want to tell you. With the help of that short trick, you can solve many questions very easily without drawing the molecular orbital diagram. So suppose H2, N2, O2, and let's take C2, etc. Okay, if you want to calculate the bond order, so you need not to draw the molecular orbital diagram every time. You need not to write the molecular electronic configuration every time. आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. आप क्या करेंगे, आपको मैं एक ट्रिक देता हूं. जब भी आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, अगर 14 आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3. अब आप चाहे ऊपर जाएं या नीचे जाएं, यू हैव टू रिड्यूस 0.5. दैट मीन्स 13 पे हो जाएगा 2.5, 12 पे हो जाएगा 2, 11 पे हो जाएगा 1.5, 10 पे हो जाएगा 1, 9 पे हो जाएगा 0.5 और 8 पे हो जाएगा 0. ऊपर चलते हैं, 15 पे हो जाएगा 2.5, 16 पे हो जाएगा 2, 17 पे हो जाएगा 1.5 और 18 पे हो जाएगा 1. ओके, ओनली यू हैव टू learn this point. Note down this one and let's solve this. Suppose hydrogen, you know hydrogen makes single bond with another hydrogen, but how can we prove this? Hydrogen has only one electron and this another hydrogen has only one electron, so 1 plus 1 2, so this will be 2, right? This is easy. We will go with this one. Nitrogen having 7 electrons, another nitrogen having 7 electrons, total electrons will be 14. For 14 we have to use the number 3, and nitrogen will make triple bond with the nitrogen. Definitely you know this, right? With molecular orbital diagram you can do this. You will find the order definitely will be 3, right? आपको क्या मिलेगा? ऑर्डर 3. O2 के लिए आपको ऑर्डर क्या पता है? 2. कैसे? 8 प्लस 8 डेफिनेटली 16. 16 का क्या नंबर है? 2. C2 का बताइए. 6 2 12. 12 का क्या नंबर है बताइए? 2. और बताइए क्या चाहिए? इजीली आप इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप आपने वो टेबुलर फॉर्म नोट डाउन कर ली होगी. सो नाउ आई वांट टू गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेज क्लास, दैट इज दिस. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ नीट पीवाईक्यूज. एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट समरी पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए. चैप्टर को क्विकली समराइज कर दिया. अब आपको बहुत सी बातों के बारे में पता लग गया है. मैंने चैप्टर को क्यों समराइज किया? व्हाई? सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, यू कैन इजीली रीड दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन. एवरीथिंग विल बी इजी इनफ फॉर यू. Everything will be easy for you, definitely. Okay, so just reply in the chat box and tell me you are ready. I am reading the question for this. I am reading the question for you so that you can easily understand. I will provide some hint and you will give me the answer. Then I will explain the answer in detail. Okay, and I will tell you the concept behind this question. मैं आपको concept भी बताऊंगा इस question के पीछे का. क्वेश्चन कह रहा है कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है ये कॉन्सेप्ट आया था चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए. स्टेबिलिटी कैसे है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बॉन्ड लेंथ सेम कैसे है, बॉन्ड एनर्जी सेम कैसे है, इन सारी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था. हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग दैट इज व्हाट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, एंड दैट इज लाइक व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, दोज न्यू ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप, साइज एंड इक्वल इन एनर्जी. सो कह रहा है कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट द मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर. देखो, आई नो वन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी एवरीवन, आउट ऑफ sp, sp2 and sp3, which one hybridization has linear shape? Which one hybridization has linear shape? sp, sp2 and sp3. sp, when s and p are combining, they will form new
two orbitals. Those new two orbitals are sp hybridized orbitals. sp2, they will form 3 new orbitals. Those are sp2 hybridized orbitals, and in sp3 4 new orbitals will be formed, and that will be sp will be linear. Definitely everyone, sp will be linear. sp2 क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और sp3 क्या होगा, टेट्राहेड्रल. सो नाउ यू हैव टू चेक ओनली द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन एटम, एंड मैंने आपको बता ही रखा है एक ट्रिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. क्या ट्रिक बता रखी मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की? आप काउंट करिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस काउंट करिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस काउंट करिए number of lone pairs which are not taking participate in delocalization. Number of lone pairs which are not the part of taking part in what? Resonance. ठीक है. So tell me the answer everyone for this particular question. Who all are ready? Reply with the answer. You can see 3 बॉन्ड यहां पर और 1 बॉन्ड यहां पर, 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. यू कैन सी 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक यहां पर हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2. यहां पर 1 सिग्मा यहां पर एक हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है sp2, और इसकी क्या हो गया sp3. उससे अच्छा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कार्बन कार्बन के लिए. क्या बता रखा है? If carbon single bond is here, then hybridization will be sp3. If carbon double bond is here, hybridization will be sp2. If carbon triple bond is here, hybridization will be sp. So you can see single bond sp3, double bond sp2, double bond sp2, single bond sp3, single bond sp3, triple bond sp, triple bond sp, और ये क्या हो जाएगा, sp3. मोल कॉन्सेप्ट की क्लासेस एंड मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर लेक्चर. ओके, सो नाउ आई एम डिस्कसिंग केमिकल बॉन्डिंग. CH2 double bond CH, CH2 single bond C, triple bond CH. You can see here hybridization will be sp2. You can go to the Sathi website, and also you can see the YouTube channel and you can watch that lecture. Okay, you can search for that. This is sp2 again. This is sp3. 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 सिग्मा यहाँ पे, 4 हो गए. This one is triple bond sp and this one is also sp. 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड. डबल बॉन्ड के लिए sp2, सिंगल बॉन्ड के लिए sp3, ट्रिपल बॉन्ड के लिए sp. ये आपके हो जाएगी sp3 और ये भी हो जाएगी आपकी sp3. ओके, थैंक यू. अब sp3 आपकी हो चुकी हैं. अब आपको क्या ध्यान देना है? sp लीनियर है, सिर्फ sp2 प्लेनर है, लीनियर नहीं है, और sp3 तो 3D में आ गई, टेट्राहेड्रल है. आप देखेंगे यहाँ पर sp3 sp2 है तो ऑप्शन ये गलत हो गया. यहाँ पे sp3 है, ये sp3, ये sp sp3, यहाँ पे sp2 sp3 sp और sp, यहाँ पे sp3 ठीक है. तो यहाँ पर sp आ रही है, और इस sp के कार्बन के साथ जो ये CH3 जुड़ा हुआ है, राइट, तो उसकी शेप क्या हो जाएगी? आप आंसर देखेंगे ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, बी. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट इन ब्यूट-2 द हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट लीनियर. ये चीज ध्यान रखनी है कि ये हाइड्रोजन लीनियर नहीं है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है. शेप इसकी लीनियर हो जाएगी जैसे HCl की होती है, HF की होती है, बट ये हाइब्रिडाइजेशन क्या नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. तो इस वजह से ये हाइड्रोजन प्लेन में नहीं है, सॉरी किस में नहीं है, लीनियर नहीं है. ये हाइड्रोजन क्या हुए हैं, टेट्राहेड्रल है. किस शेप में, किस ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल, 3D में. एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं. आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद C, उस पर 3 हाइड्रोजन है, तो उन 3 हाइड्रोजन को आप ऐसे बना सकते हो. ये एक हाइड्रोजन, ठीक है, और ये एक तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं. एक बिलो द प्लेन चला जाएगा और एक अबव द प्लेन, ठीक है. ये दूसरा और ये तीसरा. तो ये कहाँ है, टेट्राहेड्रल. कहाँ है ये, टेट्राहेड्रल.
ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, परफेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट question number 2. Let's see who will be giving the answer first. Very quickly in the chat box solve this question and take out your notebook first of all. क्वेश्चन कह रहा है इन एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर उसने बोल दिया, द पेयर ऑफ d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन d2sp3। हमें पता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में हाइब्रिडेशन या तो d2sp3 होगी या sp3d2 होगी, वो डिपेंड करता है कि इनर ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, आउटर ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बाकी जो बात आती है वो आती है कि d ऑर्बिटल्स कौन से यूज होंगे। d ऑर्बिटल्स, मैं आपको एक हिंट देता हूं, इसमें वो d ऑर्बिटल्स यूज होंगे जो अलोंग द एक्सिस है। तो बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए। देखो d ऑर्बिटल की शेप दो तरीके की होगी, एक d ऑर्बिटल्स की लोब बिटवीन द एक्सिस होगी और दूसरे d ऑर्बिटल्स के केस में लोब अलोंग द एक्सिस होगी। तो ऐसे तीन ऑर्बिटल हैं जिनकी जो शेप है वो, उनकी जो लोब है वो इन बिटवीन द एक्सिस है। इनकी लोब कहाँ है? इन बिटवीन द एक्सिस। अच्छा, आप कह रहे हैं आंसर सी, लेट सी द आंसर। और दो ऑर्बिटल्स हैं dz² और dx⁻y², जिनकी आप कह सकते हैं जो क्या dz² और dx⁻y² की जो लोब्स हैं वो अलोंग द एक्सिस है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी कह रहे हैं सी, ए, डी एटसेट्रा, आंसर मैच करेगा ऑप्शन ए, जो कि अलोंग द एक्सिस होते हैं dz² और dx⁻y²। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं dx⁻y² और dz²। डोंट वरी, मैं आपको सही आंसर भी बताऊंगा, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग द आंसर। ठीक है, आप ट्राई कर रहे हैं, इट मेक्स यू वेरी वेरी हैप्पी। ओके, सो dx⁻y² और dz² ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओनली दोज d ऑर्बिटल whose lobes are directed along x, y and z direction, मतलब जिनकी lobes along the axis है। कहां पर है? along the axis। वो ही इसका आंसर, वो ही ऑर्बिटल्स किस में जाते हैं? d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइज्ड विद s and p ऑर्बिटल्स। इन अदर 3d ऑर्बिटल्स, 3D नहीं बोलेंगे इसे, 3D ये वाला 3D नहीं, इन अदर 3D ऑर्बिटल्स नेमली मैंने आपको बताया dxy, dyz एंड dxz। मैं शेप भी दिखा देता हूं आपकी, इस तरीके से होते हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस। आप वो एक्सिस चेंज कर सकते हैं, मैं आप पे लिख देता हूँ dxy, dyz और dzx। और अगर मैं लिखूं अलोंग द एक्सिस वाले तो आप एक्सिस खुद से लिखेंगे। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे dx⁻y² और dz², इस तरीके से। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? दीज ऑर्बिटल्स जो अलोंग द एक्सिस वाले होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। इन अदर जो आपके क्या होते हैं, बाकी के 3 d ऑर्बिटल्स हैं जो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, उनमें जो एंगल होता है, जो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनमें जो एंगल होता है, जो लोब्स होती हैं वो एक दूसरे के 45 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है। कितने डिग्री के एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है फ्रॉम बोथ एक्सिस। हैंस द एक्सटेंट ऑफ देयर ओवरलैप विद s and p ऑर्बिटल इज मच लेसर देन द dx⁻y² एंड dz²। तो उनकी जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है ना वो कम हो जाता है। दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस। आई होप ये क्लियर होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो dz² और dx⁻y² के केस में ओवरलैपिंग अच्छी होती है क्योंकि उनका एंगल आप देख सकते हो, जबकि इन बिटवीन द एक्सिस वाली लोब्स की वो एक एंगल पे प्रेजेंट होते हैं 45 डिग्री फ्रॉम बोथ एक्सिस। तो एक्सटेंट ऑफ देयर ओवरलैप विद s and p ऑर्बिटल इज मच लेसर देन दैट ऑफ dx⁻y² एंड dz²। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। लेट्स सी कौन इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले प्रोवाइड करता है। आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता? क्विकली बताइए कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। इस मॉलिक्यूल का आंसर तो VBT ने भी प्रोवाइड किया था। VBT वैलेंस बॉन्ड अप्रोच ऑलरेडी प्रोवाइडेड द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। यू कैन टेल मी द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। यस, you can use MOT, molecular orbital theory. You can draw the MOD, molecular orbital diagram, using the molecular orbitals and atomic orbitals. Li2, C2, O2 and He2. Yes, which molecule
does not exist. The simplest answer for this particular question will be that the molecule which is made with noble gas, the molecule which is made with noble gas will not exist. So tell me what will be the answer for this particular question. Tell me everyone, क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? Yes, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डेफिनेटली ऑप्शन डी. For He2 molecule, the electronic configuration is sigma 1s2 and sigma 1 star 1s2. Sigma star 1s2 में है 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में. दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ABMO. तो N भी कितने 2 और ये भी कितने Na 2, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2. तो हाफ 2 - 2 0. तो कितना आंसर आया 0. 2 - 2 0 डिवाइड बाय 2 0. सिंस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 इज 0 इट डज नॉट एग्जिस्ट. बॉन्ड ऑर्डर इज 0 तो एग्जिस्ट कैसे करेगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा. मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं. कौन कौन से आपको दिए हुए हैं? Li2 C2 O2 और He2. देखो क्विकली मैं एक डायग्राम बना देता हूं, उसमें सारे फिट कर देंगे. एनर्जी ली, सिग्मा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, नए ऑर्बिटल्स बने. Atomic orbitals are combining, they are forming new orbitals. Out of them, this is 1s, this is 1s, this is sigma star 1s, and this is a bonding molecular orbital, so this is sigma 1s, right? Sigma 1s, and this is bonding molecular orbital, that means BMO. This one is ABMO, and this is sigma star 1s. Then similarly 2s, they are combining, 2 atomic orbitals are combining, so they are forming 2 new orbitals. Out of these 2, one is ABMO, which is nothing. This is 2s, this is 2s, so SS will combine, they will form sigma bond, so this will be sigma star 2s and this will be sigma 2s. Out of these 2, one is BMO, another is ABMO, that means bonding molecular orbitals, and another one is anti-bonding molecular orbital. Then the last one is 2p. I am drawing here. Okay, the energy is definitely more than that of 2s. Okay, more than this 2s. I am drawing in the next page. Okay, let's draw through the last page so that it will be easy to solve the questions. This is 2p. Out of these 3 orbitals of 2p, 2 orbitals will form pi bond and 1 orbital will form sigma bond. So you can see here, in case of O2, only O2 we have na. In case of O2 and F2, sigma will be lower and then pi. And then pi. And here is sigma. This will be 2p. So this will be sigma 2pz. This will be pi star 2px. Pi star 2py. This will be, the lower one will be pi 2px and pi 2py. This will be pi star 2px and pi star 2py. And the last one is sigma star 2pz. ये तो हो गया 2p वाला O2 और F2 के लिए, फॉर O2 एंड F2 या Ne2. अगर मैं ड्रॉ करूं 2p बाकी सब के लिए, O2 N2 से पहले वालों के लिए O2 F2 से, तो आपके 2p कंबाइन होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड. ये इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है. सिग्मा बॉन्ड बन गया, पर पाई कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, ठीक है. इस चीज का ध्यान रखना है. पहले कौन? पाई और फिर कौन? सिग्मा. तो एनर्जी वाइज पाई कहाँ है? नीचे है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में. और यहाँ क्या आ जाएगा अब? पाई और देन सिग्मा.
ठीक है, इनको इससे मैच कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया बाकी सब के लिए, रेस्ट ऑफ देम। देखो अब कौन कौन से मॉलिक्यूल दिए वो बात आती है मेन। फर्स्ट मॉलिक्यूल आपको दिया है Li2, C2 और दिया आपको O2 एंड He2। देखो नीचे स्टार्ट करते हैं। He का एटॉमिक नंबर होता है 2, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। तो इसका मतलब 2 में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1s2 1s2, 2 और 2 हो गए 4। और बाउ पॉलीज और हॉर्न्स का रूल करते यूज करते हुए हम इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिल करेंगे। BMOs में 2 आ गए, 1 2 और यहाँ 3 4। अब ये Nb है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके 2, और एंटी बॉन्डिंग में भी 2, तो 2 - 2 कितना आ गया 0, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0, तो आंसर यहाँ से भी हो जाएगा। O2 देख लेते हैं। O2 का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1s2 2s2 2p6। गलत बात, 2p6 होते ही तो वो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा बताइए, 2p6 होते ही वो बन जाएगा Ne मतलब नियॉन, मतलब नोबल गैस। उसमें रहता है 2p4, कितना रहता है 2p4, ठीक है, क्या रहता है 2p4। तो 1s में 2 हो गई, 2s में 2 भर लेते हैं। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको, 2s में भी 2 भर दिए, फिल करते हैं 1 2 3 4। 2p में भी 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 और 4 हो गए हमारे पास 8। तो पहले ये फिल करना है 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर 5 6 एंड देन 7 देन 8। ये किसके लिए था, ऑक्सीजन के लिए। गलत बात, सही बात, ये लिखा तो हुआ है O2 और F2, पहले सिग्मा फिर पाई। अगर He2 का लिख दिया, O2 का लिख दिया, C2 का लिख दिया, Li2 लिथियम का एटॉमिक नंबर HeLi, वन एस टू 2s1। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्विकली बताइए, 1s2 2s1। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 1s2 2s1 है तो आपको क्या करना है, 1s2 में 2 आ गए और 2s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक यहाँ पर, तो दोनों कंबाइन होकर सिर्फ 2 यहाँ पर देंगे आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाह रहा था कि जैसे आप लिखते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, तो इनको कंबाइन करके जब आप इसके बाद वाला लिखते हैं तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के, जैसा कि हम उसमें लिखते हैं ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में, एलिमेंट्स के केस में, उस तरीके से आप यहाँ पे के यूज कर सकते हैं। वहां पर आप यूज करते थे क्या, नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन के बाद लिखना स्टार्ट किया, आर्गन 18 4s2 3d1 ऐसे लिखना स्टार्ट किया। इस केस में आप के लिख के इस बात को आगे स्टार्ट करते हैं, तो के का मतलब इतना हो गया, और उसके बाद आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और लास्ट रह गया अब आपका O2 हो गया, C2 Li2 हो गया, ठीक है, O2 हो गया, He2 हो गया, C2 कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 तो हो गया सेम। 2p में 2 भरने, बट कार्बन के केस में हम ऊपर वाले में नहीं भरेंगे, नीचे वाले में भरेंगे, तो 2 मतलब 2, 2 मतलब 2, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। अब बॉन्ड ऑर्डर ही तो निकालना है। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं सभी के केस में। पहले निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर Li का, बॉन्ड ऑर्डर Li का कितना होगा। लिथियम के केस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, मतलब 1s2 और 2s1, तो 2 और 2 4, गलत बात, 2 बॉन्डिंग में, तीसरा बॉन्डिंग में, चौथा बॉन्डिंग में, तो 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने 2, उसके केस में सिर्फ आएंगे 2 डिवाइड बाई 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। C2 देखते हैं, C2 का मतलब ये हो गया, C2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p का मतलब हो गया 1s 2s, यहां तक फुल हो गया, और 2p में 2 भर दिए, 2 भरने के बाद यहाँ पे 2 आ गए, ये आपके BMOs हैं और ये आपके ABMOs है, वो पाई स्टार और सिग्मा स्टार हम लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि ये सिग्मा है तो ये सिग्मा स्टार हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz लिख लो, ये क्या है 2pz, ऐसे पाई के बारे में हम लिख सकते हैं। समझने वाली बात ये है कि आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं के पाई 2px2 और पाई 2py2 इक्वल टू का साइन लगाते हुए। चलिए कोई बात नहीं, इसका देख लेते हैं अब हम बॉन्ड ऑर्डर।
बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके बॉन्डिंग इसके एंटी बॉन्डिंग को कैंसिल कर रहे हैं, इसके बॉन्डिंग इसके एंटी बॉन्डिंग को कैंसिल कर रहे हैं, तो बचे कौन, 2 और 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आ गया 2, यही आया। और आप उस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं 14(3) वाले से, उसके अकॉर्डिंग भी आपका बॉन्ड ऑर्डर ये ही आएगा। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट क्या है, देखो Li2 हो गया, C2 हो गया, O2 का देख लेते हैं, Li का भी देख लेते हैं, हो गया, C2 हो गया, O2 हो गया, He2 हो गया। O2 का जब आप बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो 2 आएगा और He2 का कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो मैंने आपको क्लियरली डायग्राम से ये बातें सिखाई हैं कि He2 मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है 0। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन, मैग्नेट मतलब MnO4 2 नेगेटिव, परमैग्नेट मतलब MnO4 नेगेटिव, पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 आयंस आर टेट्राहेड्रल, दोनों आयंस टेट्राहेड्रल है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। ठीक है, देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, ये तो गलत बात है, पाई बॉन्डिंग तो होगी। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद p ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज आपका 3D सीरीज का एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 4s2 3d5। तो इसमें कौन सी मिक्सिंग होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए डी मिक्सिंग। कौन सी मिक्सिंग, डी मिक्सिंग। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल होते हैं। आप सोचिए, एक ऑप्शन तो आपको वैसे पता लग गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 4 और 2p कितना हो गया 4। क्या 2 में d होता है, नहीं होता, बिल्कुल गलत। तो कौन सा ऑप्शन मैच करना है, ओनली ऑप्शन ए। तो फोर्थ का ऑप्शन ए हो गया। आप शेप भी देख सकते हैं, MN डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव। पाई बॉन्ड्स अगर काउंट करें जो बने हुए हैं D पाई P पाई टाइप के, और परमैग्नेट आयन में भी पाई बॉन्ड जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं D पाई P पाई टाइप के। परमैग्नेट आयन में 3 डबल बॉन्ड है और मैग्नेट आयन में सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैच कर गया, और आंसर नंबर ए। आप मूव करते हैं 5 पे। अब 5 क्वेश्चन का आंसर आप 2 तरीके से कर सकते हैं। इस तो लॉन्ग मेथड जो एग्जाम में टाइम होता है कम, एक शॉर्ट मेथड जो 14 वाली ट्रिक है। लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड दोनों से मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर, बाकी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट मेथड से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव एंड O2 2 नेगेटिव की अगर लिखनी है, तो आपको एक बात क्लियरली पता है, अगर आपको लिखनी है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसकी, O2 2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, तो आप इजीली लिख सकते हैं। कैसे? उनको बॉन्ड ऑर्डर को देखते हुए, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी अच्छा बॉन्ड स्टेबल, मतलब उतनी अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसमें होते हैं 16, यहां हो गए 17, यहां हो गए 15 और O2 2 नेगेटिव का मतलब 18। तो 14 पे होता है 3, 15 पे हो गया 2, गलत बात, ये तो ध्यान रखना है। 14 पे 3, 15 पे 2.5, तो 16 पे हो जाता है आपका कितना, जल्दी से बताइए 2, तो 17 पे हो गया 1.5, तो 18 पे हो गया आपका 1, तो 16 पे होता है आपका 2, 17 पे हो गया 1.5, 15 पे होता है 2.5 और O2 2 नेगेटिव 18 पे होता है 1। अब बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला जो कि 2 पॉजिटिव वाला आएगा, O2 पॉजिटिव, देन उसके कम है आपका 1.5 नहीं O2, उसके बाद आपका O2 नेगेटिव, उसके बाद आपका O2 2 नेगेटिव। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। अब लॉन्ग मेथड ये कहता है, लॉन्ग मेथड के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाइए। मैं सिर्फ 2p वाला आपको बना के दिखाता हूं, सारे डायग्राम्स नहीं बनाऊंगा। 2p क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। ये हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। आप 1s 2s को तो आप इजीली बना सकते हैं। 2p की बात आती है, 2p ऑक्सीजन का केस में सिग्मा नीचे आ जाता है। आप मैंने कैसे बताया था कि सिग्मा को ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नीचे की तरफ खींच लेता है। पाई कहां गए दोनों, ऊपर, फिर ऊपर कौन गया पाई,
देन सिग्मा। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे 2p4 है तो मतलब 1 2 3 4, और इधर भी कितने आ जाएंगे 1 2 3 4, 4 और 4 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन टोटल फिल करने। ये आपका बना सिग्मा 2pz, ये मान लीजिए जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये पाई 2px बन गया, और ये बन गया पाई 2py। एक है आपका पाई 2px, एक है आपका पाई 2py, और एक है आपका सिग्मा 2pz। क्विकली बताइए आंसर क्या होना चाहिए, क्या वो सही था ऑप्शन ए? देखिए ये आपका बना है पाई स्टार 2px, ये आपका बना है पाई स्टार 2py, और ये आपका बना है सिग्मा स्टार 2pz। चलिए हम इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जब हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने कितने 8 फिल करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 4 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने 2, 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना मैंने बताया था। फिर आ जाता O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, आप कहीं से कर दो, मान लीजिए यहां से कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, रह गया इलेक्ट्रॉन 7, तो 2 1 2 3 4 5 6 ये तो यहीं से रहेगा, एक यहां से रिमूव हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग के कम होंगे उतना मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेंगे उतना मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है और बॉन्ड ऑर्डर कम होता जा रहा है। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करें तो अब आ जाएगा हाफ और 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 का मतलब कितना हो गया 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 2.5। 2.5। तो O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं। O2 नेगेटिव मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो थे ही उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो किसी भी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए, मान लीजिए इसमें कर लेते हैं तो हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूल डेफिनेटली अनस्टेबल होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होता चला जाएगा। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और माइनस 3 3/2 3/2। तो ऑर्डर कितना है 3/2 वैसे भी 1.5। अगर O2 2 नेगेटिव की बात करूं तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया वो यहां पे ऐड कर दीजिए, तो 2 4 6 और 2 8 कर दीजिए, तो 6 माइनस 4 2, बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना है तो कितना आ गया 6 माइनस 5 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 1। तो इसका कितना हो गया 1। अब आपको इसको अरेंज करना है, मैंने आपको आंसर बता चुका हूं। आंसर कौन सा मैच करेगा आपको, डेफिनेटली आंसर मैच करेगा ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एज बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर इंक्रीजेस। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल भी डिक्रीज करेगी। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, जितना बॉन्ड मल्टीपल होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। हाफ NB माइनस NA O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव नॉट 2 पॉजिटिव, सॉरी फॉर दैट, O2 पॉजिटिव जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है और O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना है और O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका 1 है, और 16 प्लस 1 17 70 का हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर अरेंज कर सकते हैं। ऑप्शन ए O2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा, फिर O2, फिर O2 नेगेटिव, फिर O2 2 नेगेटिव। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 नेगेटिव का आप देख सकते हैं 1.5, O2 2 नेगेटिव का 1, तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका आ चुका है ऑप्शन ए, दैट इज O2 पॉजिटिव, देन O2, देन O2 नेगेटिव, देन O2 2 नेगेटिव। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, VBT, MOT, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस। हमें पता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होते हैं, किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, कैसे कॉन्सेप्ट्स और कैसे बॉन्ड बनते हैं। तो कह रहा था आउटर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन इथीन। ठीक है जी, इथीन का मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp2 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी होगी sp2। ट्राइगोनल प्लेनर शेप में आ चुके हैं। कैन बी कंसिडर टू बी हाइब्रिडाइज टू गिव 3 इक्विवेलेंट sp2 ऑर्बिटल्स। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथीन मॉलिक्यूल। तो देखो बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, पर कई बार सारी बातें जरूरी नहीं होती। ठीक है, तो जरूरी कौन सी बातें हैं, जरूरी वो बातें हैं जो
जिनसे आंसर आ जाए। तो जरूरी बातें सिर्फ ये हैं, क्वेश्चन में पूछा हुआ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में बता दूं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड के बताने इथीन के मॉलिक्यूल में, तो ऊपर इथीन का मॉलिक्यूल बना हुआ उसको ओपन कर लो। आपको बार बार बोलना है इथ प्लस इन इथीन, प्रोप प्लस इन प्रोपीन, ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन, पेंट प्लस इन पेंटीन, उसके नॉमेनक्लेचर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा आंसर आएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिग्मा बॉन्ड शो करता हूं, सिग्मा और एक पाई। सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन वाले कितने हो गए? 4। सिग्मा कार्बन कार्बन वाले कितने हो गए? 1। पाई कार्बन कार्बन कितना हो गया? 1। ये आप देख सकते हैं सिग्मा कार्बन कार्बन कितने थे? 4। और कार्बन हाइड्रोजन कितने थे? 4। और कार्बन कार्बन कितने? 1। तो उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा, तो टोटल हो गए 5 सिग्मा। तो एक ही ऑप्शन दे रखा 5 सिग्मा को, तो आप देख सकते हैं 1, 3, 4 और 5 सिग्मा का, 5 सिग्मा का एक ही ऑप्शन दे रखा और एक पाई है। देखो 2 पाई वाला तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन बी तो कैंसिल ही हो जाता है और आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा है और एक पाई है। 5 सिग्मा और क्या है? एक पाई। मूव करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब मैं जितने भी सारे क्वेश्चंस करूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो होंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है और डेफिनेटली हम उनको डिस्कस करेंगे। बट हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो द पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो मैं आप सारे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। अब मैं आपको एक बार मैंने डायग्राम से आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं। डायग्राम से क्वेश्चन करना एक अच्छी बात है, प्रैक्टिस के लिए आप डायग्राम से करिए, बट एग्जाम टाइम में शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है ताकि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट हो सके। क्वेश्चन कह रहा है द पेयर ऑफ स्पीसीज विद सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है O2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन से काउंट करिए भाई। 8 दूनी 16 और 2 18। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 दूनी 10। O2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 दूनी 16 और 1 माइनस कर दो 15। और नाइट्रोजन में कितने? 7। ऑक्सीजन में कितने? 8, 15 और 1 माइनस कर दो 14। NO पॉजिटिव आएगा ये भी। अगर NO लिखा हुआ तो NO का निकाल लेते। 7 और 8 15, कितना आ गया? 15। और कार्बन का कितना हो गया? 6 और 8 14। N2 का कितना हो गया? 14। O2 का कितना हो गया? 16। ठीक है जी। देखो 14 16 तो होगा नहीं, मैं फिर से लिख देता हूं। 14 का मतलब 3, 15 का मतलब कितना? 2.5, 16 का मतलब 2, 17 का मतलब 1.5, 18 का मतलब 1। अगर 14 से नीचे आए, यहां पर लिख देता हूं 13 का मतलब कितना होता है? 13 का मतलब होगा 2.5। आप यहां पर भी लिख सकते हैं 13, 12, 11, 10। ठीक है, 10 का मतलब 1। 10 तक ही रुक जाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि 18 पे कितने हैं? 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। और 10 पे कितना है? 10 पे भी 1 है भाई। 10 पे भी कितना है? 1। 15 पे कितना है? 15 पे 2.5। और 14 पे कितना है? 14 पे 3। ठीक है, 15 पे कितना? 2.5 और 14 पे कितना? 3। उसके बाद 14 पे कितना है? 3। 15 पे कितना है? 2.5। 14 पे कितना है? 3। 16 पे कितना है? 2। कौन सा मैच कर रहा है आंसर? O2 नेगेटिव एंड B2। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं डायग्राम की हेल्प से भी। आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, फिर आपको इजी रहेगी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने में। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या नहीं, क्योंकि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। आप म्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमैग्नेटिक मूवमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं, कौन ज्यादा बड़ा बॉन्ड होगा, कौन सा छोटा होगा। आप बॉन्ड ऑर्डर देख सकते हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी। इसके अलावा आप देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों, अगर म्यू नॉन जीरो हो तो पैरामैग्नेटिक और म्यू अगर जीरो हो तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। बोथ O2 नेगेटिव एंड B2 हैज फाउंड ऑर्डर इक्वल टू 1। तो B2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है,
सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p y1 और पाई 2p z1। इन्होंने क्या मान लिया कि पाई 2p जो x है px, उसने क्या करी है, ओवरलैपिंग करी है हेड टू हेड। तो बॉन्ड ऑर्डर nb माइनस na डिवाइड बाई 2 आ जाता है 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 1। तो b2 इज नॉन टू बी इन गैस फेज। b2 किस में होती है, गैस फेज में। O2 2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां तक के कॉन्फिगरेशन को k आप लिख सकते हैं k देन सिग्मा 2p z2 और फिर पाई 2p x2। इसमें तो सिंबल्स नहीं लगाए वरना आप सिंबल भी लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। पाई 2p x2 और इक्वल है इसकी एनर्जी किसके, पाई 2p y2 के। आप के को ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ठीक है। पाई 2p y2 देन आ जाता है आपका कौन, पाई के बाद देखो पाई आएगा दोबारा से, पाई स्टार चलेगा, पाई स्टार 2p x2, ठीक है। यहां पे अगर एक्स वाई लिए तो जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चल रहे हैं कि जेड ने क्या किया है, सिग्मा बॉन्ड बनाया है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं ये सिग्मा बॉन्ड बनाया। पाई 2p x2 हो गया, पाई स्टार 2p x2 और उसके इक्वल एनर्जी किसकी, पाई स्टार 2p y2 की, पाई स्टार 2p y2 की। वेरी गुड, ऑप्शन मैच कर गया आपका 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना आ गया 1। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, O2 2 नेगेटिव एंड B2। तो क्या इस क्वेश्चन में हमें बहुत लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, नहीं, हमें सिर्फ वो ट्रिक याद होनी चाहिए और उससे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। फिर से वही ट्रिक लगाएंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड है, बट हमें कॉन्सेप्ट वही लगाना है। बार बार डायग्राम ड्रॉ करने से क्या होता है, टाइम वेस्ट। बट अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, वो वाले कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है उस टाइम दिमाग में, तो आप डायग्राम बना के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। डायग्राम में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर किसी को बहुत अच्छे से आता है तो 1 या 2 मिनट में आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट रैंक्स विद नाइट्रोजन स्पीसीज। आप कह रहे हैं ऑप्शन ए वेरी गुड आंसर, या नहीं होगा वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट रैंक्स द नाइट्रोजन स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना है आपको पता है, नाइट्रोजन में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए 15 और इसमें हो गए 16। बिल्कुल ठीक बात है। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 और इस पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5 और इस पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। हमें अरेंज करने थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजिंग में ही अरेंज है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो ये हो गया 3 बॉन्ड ऑर्डर और ये 1 to 2 नेगेटिव हो गया 2 बॉन्ड ऑर्डर और N2 नेगेटिव हो गया 2.5। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। अगर N2 नेगेटिव की बात करूं तो N2 नेगेटिव हो गया आपका 2.5, N2 2 नेगेटिव हो गया आपका 2 और ये हो गया 3। तो उसको तो इंक्रीजिंग चाहिए ना, तो 2.5 2 तो डिक्रीजिंग हो रहा है। N2 नेगेटिव का हो गया कितना 2.5, N2 का हो गया 3 और N2 2 नेगेटिव का कितना हो गया 2। तो कौन सा ऑर्डर चाहिए उसे, फर्स्ट वाला। कौन सा ऑर्डर चाहिए, फर्स्ट वाला। वेरी गुड आंसर, परफेक्ट आंसर इज ए। N2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। देखो इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया। फिर आया पाई 2p x2, पहले पाई नीचे होता है, अगर ऑक्सीजन है तो वो सिग्मा को नीचे ले आएगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। पाई 2p y2 देन सिग्मा 2p z2, उसके बाद सारे क्या है 0। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 10 मतलब 2 4 6। आप इसको भी लिख सकते हो सिर्फ 2 4 6 y2 मतलब 3 और टोटल करेंगे तो 10 - 4 डिवाइड बाई 2 3। N2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, देखो पीछे तक सेम रहेगा। क्या हो जाएगा N2 नेगेटिव का सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x2 पाई 2p y2 सिग्मा 2p z1 और सिग्मा 2p z1 के साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो वो चला जाएगा पाई स्टार 2p x1 में। अगर बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं किसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, डेफिनेटली आपको ये देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है या नहीं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम होगा ही होगा डेफिनेटली। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 10 - 5 डिवाइड बाई 2 2.5। N2 2 नेगेटिव की अगर बात करूं तो पाई स्टार 2p x में भी इलेक्ट्रॉन आ चुका है और 2p y में भी, तो बॉन्ड ऑर्डर फिर से कम होना चाहिए। मॉलिक्यूल अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, बॉन्ड ऑर्डर कम होता जा रहा है, स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, बस। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 2, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 2। क्लियर। तो इस तरीके से हमने आंसर 8 का ऑप्शन निकाला ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम्स के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जो फॉर्म हुए हैं उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कह रहा है सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम्स बट ए पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड।
सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग साइड वाइज होती है, ये बात तो ठीक है। वो पूछ रहा है नॉट करेक्ट। बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर इन द ऑर्डर ऑफ, सिग्मा की बॉन्ड एनर्जी कम दे रखी है और पाई की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा दे रखी है, मतलब ये कह रहा है कि पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू सिग्मा। फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड बट नॉट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड, ये बात भी ठीक है। तो आंसर डेफिनेटली कौन सा मैच कर रहा है, क्विकली बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीवन। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए होती है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग लाइक दिस, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। और पाई बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग होती है साइड वाइज लाइक दिस, ये साइड बॉन्ड बना है, इसमें ओवरलैपिंग लेस है, ओवरलैपिंग एक्सटेंट बहुत कम है, इसमें ओवरलैपिंग एक्सटेंट अच्छा खासा है। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए, क्विकली रिप्लाई करिए सभी चैट बॉक्स में। यस, काफी अच्छे आंसर्स आ रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डेफिनेटली होगा सी, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहता है देन पाई बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, सो इट मस्ट बी हैव हायर बॉन्ड एनर्जी देन पाई बॉन्ड। तो बट द आंसर इज गिवन, but in option is given bond energy of sigma bond and pi bond are in the order of 264 kilojoule per mole and 347 kilojoule per mole. So definitely 347 kilojoule per mole is a higher value and which is of pi bond. Definitely pi bond has more, tell me, more bond energy. More bond energy. बट इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, लेस, जो कि गलत बात है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। तो ये ऑप्शन सी गलत है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैच कर गया सी, एज सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, सिग्मा स्ट्रॉन्गर है पाई से, सो इट मस्ट बी हैव हायर बॉन्ड एनर्जी देन पाई बॉन्ड। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, आर यू रेडी? Yes, no? Quickly reply करिए in the chat box. Question number 10. N2 and O2 are converted into mono anions. Mono मतलब सिंगल, anions मतलब नेगेटिव, मतलब N2 को बदला गया N2 नेगेटिव में, O2 को बदला गया O2 नेगेटिव में। Which of the following statement is wrong? N2 का बॉन्ड ऑर्डर, N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर, O2 और O2 नेगेटिव सबका बॉन्ड ऑर्डर बता देता हूं। N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, N2 नेगेटिव में एक बढ़ गया तो हो गया 2.5। O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 और O2 नेगेटिव में एक बढ़ गया तो हो गया इसका 2 1.5। तो डेफिनेटली ये हुआ कि N2 वीक है, N2 नेगेटिव स्ट्रांग है, और N2 स्ट्रांग है, N2 नेगेटिव वीक है, और O2 स्ट्रांग है, O2 नेगेटिव वीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। कह रहा है इन N2 द नाइट्रोजन बॉन्ड वीकन्स। इन N2 जब आप N2 को N2 नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो नाइट्रोजन बॉन्ड वीक होने लगता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि N2 स्ट्रॉन्ग है, N2 नेगेटिव वीक है। इन ऑक्सीजन द ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज हुआ। इन O2 बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। O2 में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। गलत बात, O2 में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज नहीं हो रही, O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अगर बॉन्ड लेंथ यहाँ पे है तो 1.5 होने पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज होगी। N2 नेगेटिव बिकम्स डायमैग्नेटिक, वो डिपेंड करता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। डाया और पैरा के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, क्योंकि BCNO के लिए आप डायग्राम इजीली लिख सकते हैं, पहले पाई देन सिग्मा, पहले पाई देन सिग्मा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ऐसा नहीं लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो 1s और 2s के लिए नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ 2p के लिए लिख रहा हूँ। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे आ गया पाई, तो पाई क्या हो गया, पाई 2px2 पाई 2py2। उसके बाद सिग्मा 2pz2 हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 तो 6, पाई स्टार में तो गए ही नहीं, सिग्मा स्टार में तो गए ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी फुल है, पाई वाले ये दोनों फुल है और सिग्मा वाले फुल है, तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स डाया क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। वी नो दैट इन O2 bond the bond order is 2 and in O2 negative the bond order is 1.5, therefore the wrong statement is B। तो wrong statement कौन सी हो गई, B। मैं रिपीट करता हूं, O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2
और O2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.5। तो स्टेटमेंट में कह रहा है इन O2 द ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। मैं सारी बातों को डिस्कस कर चुका हूं आपसे। मैंने ये भी डिस्कस कर लिया कि डायमैग्नेटिक है, तो सारी बातें क्या हो गई आपकी पता है क्विकली। ऑप्शन बी को छोड़ के सारी बातें करेक्ट हो जाती हैं। ऑप्शन बी को छोड़ के सारी बातें क्या है करेक्ट, तो आंसर क्या है ऑप्शन बी। वी नो दैट इन O2 द ऑर्डर इज 2। जब आप इसका डायग्राम और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, ये सारी बातों को डिस्कस इजीली कर सकते हैं। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ में क्या चेंज हो रहा है और क्या नहीं चेंज हो रहा है। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेटली 2 होता है। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5। इसका मतलब क्या होगा कि रॉन्ग स्टेटमेंट है बी, क्योंकि वी नो दैट इन O2 बॉन्ड ऑर्डर इज 2 एंड इन O2 नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर इज गेटिंग डिक्रीज नॉट इंक्रीज, राइट, नॉट इंक्रीज। अगर आप O2 पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, O2 पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने 15 और 15 पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो सकता है। O2 से O2 पॉजिटिव में जाने पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बट O2 से O2 नेगेटिव में जाने पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग इन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो O2 पॉजिटिव में जब आप गए तो हुआ क्या, 8 दूनी 16 में से गए 15 और 15 पे होता है 2.5। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। आर यू रेडी एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 11 एकदम इजी क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन, बहुत सिंपल। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दे रखा है आपको के से के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। के के लिए आप सिंपल यूज कर सकते हैं सिग्मा 1s तक। ठीक है, सिग्मा 2s तक ना जाके आप कहां तक यूज कर सकते हैं 1s तक, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 को हम बोल देते हैं के। इसके लिए हम यूज कर लेते हैं के। ओके, आई होप ये आप बात को क्लियर होगी। जब मैं 2s तक यूज कर रहा था, 2s तक यूज ना करके आप सिर्फ 1s तक यूज करेंगे और 2s वाले को आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2s वाले को क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि 1s वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट नहीं है तो वो तो हट गए। तो 2s एक तरह से वैलेंस शेल है तो उसको दिखाया जा रहा है। 2s को, π2px को, π2py, π2z को, जो भी है सिग्मा 2pz को, उनको दिखाया जा रहा है। क्लियर? तो इसको आप के से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 π2px2 π2py2 और सिग्मा 2pz2। कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर का सीधा फॉर्मूला पता है, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्विकली बताइए आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करेंगे तो आप देखो के वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि बॉन्डिंग ने एंटी बॉन्डिंग को कैंसिल कर दिया, छोड़ देते। बॉन्डिंग यहां पे काउंट करिए 2 4 6 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग काउंट किए 2 ओनली 2, 8 माइनस 2 कितना होता है 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 6/2 3। ये बॉन्ड ऑर्डर N2 के मॉलिक्यूल का है। हमें भी पता है क्यों हम ये काउंट करें, क्यों कितना भी वो दे दे, मुझे N2 बोल दिया 7 दूनी 14 मतलब 7 2 जा 14, 14 पे कितना होगा 3। तो आंसर कितना मैच कर गया 3। मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन था। एक बार देख लीजिए आप क्वेश्चन को और इसके सॉल्यूशन को। आंसर डी, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन देयर आर 4 कंप्लीटली फिल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड 1 completely filled anti-bonding molecular orbital so that Nb is equal to 8 and Na is equal to anti-bonding number of electrons present in anti-bonding molecular orbital is equal to 2। so bond order हो जाएगा आपका हाफ Nb minus Nb मतलब हाफ 8 minus 2 मतलब 3। तो N बनाता है ट्रिपल बॉन्ड N के साथ और काफी इनर्ट है। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, linear combination of 2 hybridized orbitals belonging to the 2 atoms and each having 1 electron leads to a। रिपीट करता हूं, लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का belonging to 2 atoms and each having 1 electron leads to a सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट बॉन्ड या पाई बॉन्ड। इसका आंसर तो आप सभी बता सकते हैं। 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, या ऐसे समझिए एक ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, और दूसरा ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बन सकता है,
दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आप बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड्स को समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या लिया, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इनकी छोटी लोब c वाली हो गई। ऐसे दूसरे एटम के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आएंगे तो ये दो इनकी छोटी लोब्स हो गई, तो कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। ये sp के केस में। ऐसे आप sp2 कर सकते हैं, ऐसे आप sp3 कर सकते हैं। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन होगा दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, तो वो लीड्स करेगा किसको? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। वेरी गुड आंसर, आंसर इज ऑप्शन ए। कौन सा आंसर मैच करेगा? ऑप्शन है सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये आंसर नहीं होंगे। तो कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 12? एकदम इजी, एकदम कॉन्सेप्ट इजी था। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट जो सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल सिमेट्री होती है जिन ज्योमेट्रीज में, उनकी डाइपोल मूवमेंट होती है 0। अगर डाइपोल मूवमेंट 0 है तो मॉलिक्यूल हो गया नेचर में नॉन पोलर। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसा हो गया नेचर में? नॉन पोलर। जब आप VSEPR थ्योरी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स की शेप को निकालेंगे, तो NS3 की जब आप शेप देखेंगे, शेप और ज्योमेट्री, तो इसकी शेप आ जाएगी आपकी 7 + 3 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाता है? 5। मतलब किससे मैच, सॉरी नॉट 7, जब आप NS3 की शेप को कैलकुलेट करेंगे तो किससे मैच करेगा? देखना ध्यान से। इसके हो गए 7, सॉरी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, 5 + 3 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 4। 4 में से लॉन पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने? बॉन्ड पेयर 3 और लॉन पेयर हो गए आपके 1। तो ये टाइप हो गया AB3L का, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और शेप है पिरामिडल। कैसी शेप है? पिरामिडल। वहीं पर हम H2S की शेप बनाएंगे तो H2O की तरह रहेगा, कुछ टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री रहेगी, बट शेप रहेगी कुछ इस टाइप की। ठीक है, बेंड शेप एक तरीके से, या V शेप बोल सकते हैं। जब हम CH4 को ड्रॉ करेंगे तो आप सेम देखेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी, बिल्कुल आइडियल टेट्राहेड्रल। आप कह रहे हैं ऑप्शन सी, चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। एकदम इजी से कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से आप सोच सकते हैं ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन A, B, D होगा। मैं एक और इजी बात बताता हूं आपको। इजी बात यह है, सिमेट्रिकल वाले में डाइपोल मोमेंट क्या रहेगी? 0। सिमेट्रिक जिनकी ज्योमेट्री है, ठीक है, और सारे बॉन्ड्स क्या है? सेम है, सारे जो एटम्स हैं वो भी सेम है, तो उसके केस में डाइपोल मोमेंट क्या रहेगी? 0। डाइपोल मोमेंट 0 का मतलब नॉन पोलर। और HF की शेप तो लीनियर ही होती है, तो इसके अंदर तो डाइपोल मोमेंट होगी, इसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट होगी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरीके से रिजल्टेंट कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। H2S के केस में लॉन पे रिपल्शन है, तो ये एंगल डिक्रीज होगा, डाइपोल मोमेंट आएगी बट इससे कम होगी। और CH4 के केस में डाइपोल मोमेंट 0 होगी। CH4 के केस में डाइपोल मोमेंट क्या होगी? 0। तो एक या दो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं जिनके केस में CH4 नीचे बैठा हुआ है, ऑप्शन B और D। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? D। ऑप्शन D परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। HF लीनियर जिसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, NS उसमें कोई कैंसिल वाला पार्ट नहीं है। NS3 में डाइपोल मोमेंट आ रही है बट HF से थोड़ी कम होगी, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। H2S में NS3 से थोड़ी कम होगी क्योंकि 2 लोन पेयर आ चुके हैं, थोड़ा सा कैंसिल वाला पार्ट आ जाता है। CH4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल मोमेंट 0 ही होगी क्योंकि सिमेट्रिकल इसकी अरेंजमेंट है, मतलब इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो कि सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर होगा। मूव करो क्वेश्चन नंबर 14 पे। आर यू रेडी? तो चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन डाइबोरेन। Diborane is what? That is B2S6. You know banana bond? In diborane, banana bond exists. I want to draw the structure first of all. This is nothing. Banana bond is like 3 center 2 electron bonds. It will look like this. These two hydrogen atoms are at the banana bonds, right? And these bonds are 3 center 2 electron bonds. What is that bond? 3 center 2 electron bonds. Now the question is the type of hybridization of boron in case of diboron.
तो आप देख सकते हैं सिग्मा 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 सिग्मा, कितने बॉन्ड बना दिए इसने? 4। तो कैसी हाइब्रिडेशन होगी इसकी? sp3। इधर भी सिग्मा 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 सिग्मा, कितने बॉन्ड बना दिए? 4। 4 का मतलब sp3। मतलब कितनी जल्दी इन्होंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व हो गई है। ऑप्शन सी, तो आपने कहा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक आंसर। ईच बोरोन एटम इन डाइबोरेन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। 4 हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे दोनों बोरोन के साइड में, जिनमें से आप समझेंगे ध्यान से कि एक बोरोन पे 2 हाइड्रोजन एटम इस वाले कॉर्नर पे, एक बोरोन पे 2 हाइड्रोजन एटम इस वाले कॉर्नर पे, और दोनों बोरोन 2 हाइड्रोजन एटम से सेंटर वाले पॉइंट पे लिंक्ड है। और ये जो 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं सेंटर वाले हाइड्रोजन के साथ, ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये है बनाना बॉन्ड। इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बोरेन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोरेन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 ऑन द लेफ्ट एंड 2 ऑन द राइट साइड, दो हाइड्रोजन एटम्स है, नॉन एज टर्मिनल हाइड्रोजन। ये कैसे हाइड्रोजन है? टर्मिनल हाइड्रोजन। दीज आर टर्मिनल हाइड्रोजन्स। टर्मिनल हाइड्रोजन्स are in different environments from the other 2 hydrogen atoms which are known as breathing atoms, and these are breathing atoms. इनका environment इनसे different है। These are breathing atoms, BRIDGING. The 2 boron atoms and the 4 terminal hydrogen atoms lie in the same plane, but the breathing atoms are not lie in the same plane. The breathing atoms, one is above and one is below. One is above and one is below. You can draw like this banana shape. You can draw this banana shape. I want to draw it again. इस टाइप से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, रिपीटिंग वन मोर टाइम, द 2 बोरोन एटम्स एंड द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स। यहां पर टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, जिनमें से 4 हाइड्रोजन एटम्स टर्मिनल हाइड्रोजन हैं और 2 हाइड्रोजन ब्रीजिंग हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो 2 बोरोन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम बैठे हुए हैं प्लेन में, एक हाइड्रोजन ऊपर है और एक हाइड्रोजन प्लेन से नीचे है। ये बनाना बॉन्ड्स हैं और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। कैसे बॉन्ड्स हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। क्लियर? जो 2 ब्रीजिंग हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 अबव एंड 1 बिलो हैं, वो लाइन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। That's a very easy and simple question. तो इस टाइप के क्वेश्चन if you will get in NEET exam, definitely you can solve these questions in couple of seconds only. You need not to spend very much time while solving these types of question. अगर आप इन क्वेश्चंस में टाइम सेव कर लेंगे तो आप जो ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनमें अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। और यही होती है एक पेपर को निकालने की टेक्निक और क्वेश्चंस में अप्रोच लगाने की टेक्निक। आपको शॉर्ट ट्रिक्स ज्यादा से ज्यादा पता होनी चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करते रहते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में आके वी विल मार्क द आंसर। आंसर्स आर अप्रोक्सीमेट, जो ऑप्शंस होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं। जैसे किसी में डेसिमल के बाद कुछ वैल्यूज डिफर हैं, तो उस टाइप के केस में, उस केस में आपको कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करना है सो दैट यू कैन इजीली गेट द आंसर एंड करेक्ट आंसर। ओके, एंड आपको मार्क्स मिले, नेगेटिव मार्किंग ना हो, मार्क्स कट ना हो। ओनली वन क्वेश्चन लेफ्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स। देखो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का आप आंसर करिए, तब तक मैं आपको परसेंटेज एस करेक्टर बताना है और साथ में आपको परसेंटेज पी करेक्टर भी बताना है। ठीक है, दोनों करेक्टर बताइए। यू आर सेइंग ऑप्शन ए, वेरी गुड वेरी गुड।
I want to discuss the sp3 hybrid orbital shape. You know sp3 बनने के लिए s के 1 और p के 3 orbitals are combining. That means px, py and pz. So if 4 orbitals are combining, definitely 4 atomic orbitals are combining, you will get new 4 orbitals. Very good answer, 25%. Perfect. Then tell me the p character as well. These 4 orbitals are named as sp3 hybridized orbitals. All these 4 orbitals are named as sp3 hybridized orbitals. What will be the shape? The sp3 hybridized orbitals looks like tetrahedral in shape like this. I am not drawing the smaller lobe of a hybrid orbital because you know that a hybrid orbital representation is like this. Not this one. You can draw like this. Like this, a smaller lobe and a bigger lobe. Okay, very good answer, 75% p करेक्ट. परफेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट. इस टाइप से एक स्मॉलर लोब होती है और एक क्या होती है, बिगर लोब. ठीक है, ये होता है. मैं स्मॉलर लोब्स को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं. इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये हमारी कुछ टेट्राहेड्रल टाइप की क्या है, ज्योमेट्री. ठीक है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में है. अगर आपको परसेंटेज करेक्टर निकालना है तो सिंपल, उसमें s के कितने लोब्स हैं वो देखना. एक टोटल कितने हैं, 4, मल्टीप्लाई विद 104%, यू विल गेट द आंसर 25%. और अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है तो 1/4 s करेक्टर, और बाकी 3/4 क्या बच गया, p करेक्टर. 3/4 क्या है, p करेक्टर. ठीक है, या फिर परसेंटेज टोटल होती है 100, आप 3/4 इंटू 100 करके निकाल सकते हैं, या 100 माइनस 25 करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 75%. ओके, तो आंसर इज व्हाट, 1/4 s करेक्टर, नॉट 1/2. 1/2 किस में होगा, 50-50 sp वाले केस में. 1/3 किस में होगा, 1/3 s करेक्टर आपका होगा sp2 के केस में, जहां पे होगा 1/3 s करेक्टर. ठीक है, और नॉट ऑप्शन डी. तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है 15 का. इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 पार्ट आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल इज s ऑर्बिटल, सो इट हैव 25% और 1/4 s करेक्टर. यस एवरीवन, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट्स. मैंने एंटायर चैप्टर की समरी को एक बार क्विकली ओवरव्यू किया था, आपको चैप्टर को समराइज किया था, और जिस कॉन्सेप्ट के हम क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट करने वाले थे, जो हमने कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्विकली आपको समझा दिए थे पहले, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास. सो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने, कॉन्सेप्ट्स एक बार पढ़ लीजिए, और जितने PYQs हम सॉल्व करेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स मैं आपको साथ साथ बताता ही रहता हूं. बट आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, ताकि आपको पता लगे कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच लगानी है, और किस शॉर्ट ट्रिक का भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने टाइम को सेव कर सकें. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो टेक केयर and have a good day to everyone. Bye.